کہا فرید الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، فرید الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ تجھے میں نے کبھی بے وضو دودھ پلایا نہیں، جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے باوضو ہو کے پلایا ہے۔ جب ماں زاہدہ ہو، ذاکرہ ہو، عابدہ ہو، جس کے قلب صاف ہو، تو اولاد جو ہوتی ہے نا، فرید الدین گنجے شکر، قطب الدین بختیار کاکی، علاء الدین علی احمد صابری کلیری اور وحد الدین اشرف جہانگیر سمدانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کے نام پہ آپ نے محفل اچائی ہے، اب ہم لوگ چل جائیں کے بعد دیکھو نا گانا بجانا ہے، گانا بجانا، پھر اس کے بعد پوری رتیاں ناچیں گے، ہے کہ اس کو گلیاؤ، اس کو گلیاؤ، اس کو بولو۔ اچھا ایک حدیث کریمہ یاد آ گئی آپ کو بتاؤں، تھوڑا بول تو نہیں ہو رہے ہو نا؟ اگر بول ہو تو بتایا ہوں میں، ہے نا، اس لیے کہ میں آپ کے علاقے میں جو آیا نا بڑی مشکلوں سے میں آیا ہوں۔ آپ نے یہ بڑی والی بات نہیں کر رہا ہوں الحمدللہ، دو تین جو پروگرام چھوڑ چھاڑ کے کسی کی محبت نے یہاں اتنا مجبور کر کے مجھے لایا ہے، اور پھر آپ کی یہ دل جمعی دیکھ کے میں بولنے پہ مجبور ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اچھا ایک بات یہ ہے، اب بتیا تھوڑا مزیدار ہے کہ نہیں ہماری، ہے نا، اسے خالی مزیدار نہ سمجھو صاحب، اسے یاد رکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا صاحب آئے تقریریاں بڑے مزیدار کیے نا صاحب، مزیدار نہ تقریر کریں ہم۔ میں تو اپنی تقریر میں یہ چاہتا ہوں کہ دوٹو آدمی سدھر جائے تب بات بنے ہماری، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا کچھ لوگ سدھریں، کہ کب تک ایسے 80 سال کا جو ہے بڈھا ہے یا 50 سال کا بزرگ ہے وہ نماز نہیں پڑھنے جاتا، ہے کہ نہیں؟ یہ 30 سال یہ 20 سال والے یہ لوگ، اور ہم مانتے کہ لوگوں کو جنہوں نے 30 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا، اور جنہوں نے کیا کیا، اللہ کی رضا کے لیے سب کو چھوڑ کے کچوچا میں جا کے بیٹھ گئے تاکہ ان کے قلب کی اصلاح ہو جائے۔ پتہ یہ چلا اشرف جہانگیر سمنانی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، اشرف جہانگیر سمنانی اسے کہتے ہیں جو بیعت کے بیعت وقت لاکھوں لوگوں ہزاروں لوگوں کو پڑھایا کرتا۔ آپ کی کتابوں کو پڑھے نا حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ کی باتوں میں پڑھے نا حیرت میں پڑ جائیں گے میرے دوستو، مگر ضرورت ہمیں ہے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں، اپنے فکر کی اصلاح کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کو بتاؤں مسلمان کی فکر کیسی ہونی چاہیے، مسلموں کی عادت کیسی ہونی چاہیے، ان کے قلب کیسے ہونے چاہیے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اسے جو دیکھے، یہ جو آ رہا ہے نا، یہ نماز جو پڑھا نا، اگر کوئی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتی اسے دیکھے۔ پھر وہ شخص ہے دوسری نماز میں، پھر نماز پڑھنے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا جسے جنتی مرد کو دیکھنا ہو اس سے دیکھے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ جسے جنتی مرد کو دیکھنا ہے نا اس سے دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے صاحب۔ اب جب وہ شخص جانے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پیچھے پیچھے ہو گئے، فرمایا کہ 3 دن کے لیے مہمان رکھ لو گے ہمیں؟ کہا کہ حضور آپ کے پاس سب کچھ ہے، میں مہمان کیوں لگوں گا، آپ کا گھر برابر میں ہے۔ کہا بس ویسے دل کہہ رہا تمہارا مہمان ہو جاؤ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے مہمان ہو جاؤ۔ صبح شام رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا لین دین سب کچھ حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھنے لگے۔ جب 3 دن ہو گئے نا، تیسرے دن جاتے جاتے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہاری مہمانداری سب کچھ اچھی، اللہ اسے قبول کرے، مگر پتہ ہے ایک بات ہے جو مجھے پریشان کر کے نا 3 دن کے لیے تیرا مہمان بنایا ہے۔ کہا وہ کیا پریشانی ہے حضور؟ کہا وہ پریشانی یہ ہے کہ نا تو جب مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جسے جنتی مرد کو دیکھنا کے لیے کوئی اناد نہیں ہے، کوئی نفاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے حضور۔ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ لیے کوئی اناد نہیں ہے، کوئی نفاق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے حضور۔ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے تجھے جنتی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھیں اپنا حالات دیکھیں صاحب، آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، قرآن تو ہماری یہی اصلاح کر رہا ہے نا، قد افلح من زکاہا، تحقیق کی وہ لوگ مراد کو پا لیے جنہوں نے کیا کیا، اپنے نفس کی حفاظت کی۔ اچھا نفس کی حفاظت تو یہی نہ کسی سے بغض نہ کیا جائے، یہ نفس کی حفاظت، ورنہ جب نفس ملامت میں ڈالتا ہے نا بندہ بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے، بندہ بڑا سا پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے نا، کوئی حضرت
बायजीद बुस्तामी से पूछे, जनाब तैफूर से पूछे कि बताओ नफ्स को कैसे मलामत में डाला जाए। आप कहेंगे नफ्स को मलामत में डालना, ये सिलसिले मलामतिया से पूछा जाए। ये सिलसिले मलामतिया साहब, ये बड़े कमाल के बुजुर्ग मेरे आका सुल्तानुल औलिया वहीदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी अली रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मुझे सिलसिले मलामतिया में बैतो खिलाफत हासिल है। अच्छा, ये सिलसिले मलामतिया के लोग ना बड़े अजीब होते हैं। ये होते हैं ना, आप उन्हें गाली दे, उन्हें बुरा भला के, वो अपनी धुन में रहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी हज करके वापस लौटे। आप जब बुस्तान शहर से कुछ और मीलों के फासले पर पहुंचे तो लोगों ने क्या क्या भीड़ लगा दिया। आप फरमाते जिक्र और अस्कार नहीं हो पाते, तस्बीह नहीं हो पाते, सब कुछ भी हो नहीं पाते, कर नहीं पाता मैं। तो मैंने क्या किया कि अब लोगों को दूर कैसे करें। अच्छा, यार जो होता है ना, वो ये चाहता है कि हमारा वक्त यार की महफिल में रहे। दोस्त हमारा वक्त चाहता है ना, दोस्त की महफिल में हमारा वक्त रहे, कभी उससे गफलत ना हो, कभी उससे गफलत ना हो। अगर गफलत हो जाए ये तो बड़ी बुरी बात है साहब, ये तो बड़ी अजीब बात है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि लोग इकट्ठा हो गए तो तकबीर और तहलील, दुरूद और सलाम ये पढ़ने में कमी आ गई। तो मैंने क्या किया, रोटी निकाली और बीच चौराहे पे रमजानुल मुबारक के महीने में खाना शुरू कर दिया। इस जमाने में अगर कोनो पीर साहब ऐसे खाए तो कोनो मुरीद नहीं है, उनके कुल मुरीद जो ना इरादत तोड़ के भाग जाएंगे आप दूसरे पीर साहब के पास। अरे अजीब पीर साहब रमजान के महीनों में रोटी खाते है कि नहीं। आज तो मुरीद पीर साहब को अंदाजता है कि नहीं, अंदाजते नहीं कि नहीं अंदाजते। कोई मुरीद इसलिए थोड़ी होता है कि निजात पा जावे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्ब कयामत में निजात का जरिया ये कि कोई किसी के हाथ पर बैत हो जाए, बैत हो जाए। अच्छा, ये वाला किसी के दिमाग में है, मुरीद हुए तो यह नाते कौन सूफी निजामुद्दीन अली रहमतुर रहमान से मुरीद ये नाते हुए कि साहब मुरीद हो ना थोड़ी दुआ कही तो खेतवा बढ़िया है, कोई मकनवा कोई बढ़ जाए, थोड़ा पैसा हो जाए, मालदार हो जाए, हई हो जाए, उन हो जाए। करते कि नहीं करते? अक्सर लोग कभी कोई किसी पीर के पास जाके ये दुआ करता है, हुजूर इसलिए दुआ करने की ईमान पर खाता हूँ। कोई जाके कहता है, कोई गरीब नमाज की बारगाह में जाए, वो आस्थाने पे जहाँ पे जाने के बाद ना बेवजह रोना आ जाए साहब, उस आस्थाने पे जाके कहता है कि हुजूर जैसे आप दुनिया से गए हैं ना, हमारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह ईमान पर खात्मा कर दे। इस तरह कोई कहता है? मेरे आका सुल्तानुल औलिया मीर सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी अली रहमान की बारगाह में कोई जाके इस तरह कहेगा? कोई कहता है? सब जानते हैं औलाद के लिए, भाई बाप के लिए, घर द्वार के लिए, सब इसके लिए दुआ करते हैं। और तो दुआ किसके लिए करना चाहिए? दुआ सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए करनी चाहिए ना, वो चीज ये हो कि ईमान के लिए दुआ। ईमान सलामत तो सब सलामत, वरना लुटेरे ना एकदम रास्तों में जहां जहां देखे तहां तहां लगे। मेरे आका है ना, मेरे आका इमाम अहमद रजा अली रहमतुर रहमान फरमाया करते थे ना, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जगते रहिए चुरवन की रखवाली। समझ रहे इस शेर को? अगर इस जो है ना शेर को समझना हो ना, कद अफलहा मन ज़क्काहा, इस आयत करीमा को और इस अशार को आप समझेंगे ना, बहुत आसानी से समझने लगेंगे कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जगते रहियो चुरवन की रखवाली है। मतलब क्या है इमाम अहमद रजा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं तो कहना ये चाहता हूँ जब तुम रुकू करो तब भी ख्याल रखो, जब तुम सजदा करो तब भी ख्याल करो, जब कयाम करो तब भी तुम ख्याल करो, जब लोगों से मिलो तब भी ख्याल करो, जब लोगों को दो तब भी तुम ख्याल करो, जब अल्लाह किसी से मिले तो अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी करो तब भी ख्याल करो। यानी हमारा वक्त जो है तुम अपने नफ्स पर ख्याल करो, इसलिए कि ये लुटेरा जो है ना, ये कब लूट लेगा किसी को पता भी नहीं। आला हज़रत सरकार ने फरमाया था ना जो कि सोना जंगल रात अंधेरी और छाई बदली काली है, यानी ईमान जब लुट जाएंगे ना, कुछ भी पता ना रहेंगे। लुटेरे कभी अकीदे की शक्ल में, कभी नमाज की शक्ल में, कभी रोजे की शक्ल में, हर शक्ल में तुझे परेशान करेंगे। उस वक्त तुझे अपने नफ्स पर ख्याल रखना होगा और अपने आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को मजबूत करना होगा। और जब तेरी निस्बत मजबूत हो जाएगी तो तुझे कोई गुमराह ना कर सकेगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं ना साहब,
हजरत भाई यजीद बुस्तामी फरमाते ना, रमजानुल मुबारक का महीना, मैंने रोटी खाया, जितने मुरीद थे सबके सब भाग गए। और ये नफ्स को ना धोखा देना बड़ा आसान काम नहीं है, इसे धोखा देना बड़ा मुश्किल काम है, और इसके मक्र में फंस जाना और इससे बच जाना कोई आसान सा काम नहीं है साहब। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कभी नमाज के जरिए, कभी और चीजों के जरिए ये डाल ही देता है। फरमाते हैं जितने भागे सबके सब भाग गए और फिर मैं भी चल दिया। अच्छा, अजीब सा मामला है। मुसाफिर के लिए एक मसला बताऊं, मुसाफिर के लिए रोजा जो है रमजानुल मुबारक का रोजा रखना फर्ज नहीं, वो खा सकता है, मुसाफिर है ना। आप फरमाते हैं कि इस मसले के तहत मैं बच भी गया और अल्लाह ने मेरी हिफाजत भी कर दी और लोगों के मक्र फरेब से भी बच गया। ये होता है ये साहब, जब आदमी अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा समझने लगता है ना, जब ज्यादा बड़ा समझने लगता है तो आप यकीन जाने कि उसे जो है ना उसके नफ्स के ना की आफतों ने उसे घेर लिया। और नफ्स का तज़किया होना और कल्ब का तस्फिया होना ये बहुत जरूरी है, इसका जो है ना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये ना समझे कि ये वाली तकरीर आज अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल औलिया मेरे आका मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का करम है। इस आयत करीमा पे आज जो है ना मुश्किल से 6 महीने से बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सोच रहा हूँ ना इसके जरिए हम इस्लाह कर सकते हैं लोगों। और मेरे इलाके बड़े लोग सुधर गए और मैंने यही सोच के ना आपकी खुशनुदी के लिए मैं तकरीर नहीं करता, मैं अपने मिजाज के मुआफिक जो मेरा रब और रसूल मुझसे राजी हो जाए मैं उसके मुआफिक कलाम करता हूँ। और ये कोई ये सोचे कि मैं आपके मुआफिक, ऐसी कोई बात नहीं, या ये थोड़ा आपको लज्जत मिले ऐसी भी कोई तकरीर नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि आपकी भी इस्लाह हो जाए, मेरी भी इस्लाह हो जाए, आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। और जब आपका भला होगा तो मेरा भला नहीं होगा। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिसकी वजह से कोई शख्स ना दीनदार हो गया उससे कह दो कि वो भी उसी के साथ जन्नत में चला सुभान अल्लाह, क्या बात है ना। हम लोगों की फिक्र, लोगों को सुधारें इस वजह से कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, और जिस काम में रब और रसूल की रजा शामिल ना हो वो काम ही अबस है, बेकार है साहब। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हमारी तो ये बड़ी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी बड़ी है साहब। ये क्या करें, ये अंबियाओं वाला काम कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ना, मेरे जो उम्मती होंगे, उम्मती में जो उलमा होंगे वो बनी इसराइल के अंबिया के मिस्ल होंगे। इनके काम भी बड़े हैं ना, तो हमें थोड़ा परेशान सा नहीं हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते, इनसे ना डेली ना कहा करें, हफ्ते में एक दिन जरूर नमाज के लिए कहें, हो सकता है धीरे धीरे सुधर जाए। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूँ ना, 5 वक्त आज से मत पढ़िएगा आप लोग, एक वक्त की पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, है ना। एक वक्त की पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो काम धीरे धीरे किए जाते हैं ना वो पाए तकमील को पहुँचते। थोड़ा धीरे धीरे करिए। एक बैग करेंगे ना तो घबराहट सी होगी, बेचैनी सी होगी, उलझन सी होगी, कहियो तो आप मेरा रूह परेशान करी तुम्हें, है कि ना। बढ़ के मौलवी साहब हो गए हो, चाहे बार बार मस्जिद का भाग भाग के यार, तुम्हें बताओ कि आप पर भी नमाज जरूरी है ना। अच्छा, अगर घर में आज के जमाने में इन औरतों से बड़ा सिस्टम चलता है, अगर औरत घर की तगड़ी हो, तगड़ी मतलब समझते हो, पावरफुल हो, तो कौन आदमी है जो नमाज ना पढ़ी। इस जमाने में कोई आदमी है ऐसा, अगर कहीं की कह दे वो औरत कि देखो अगर नमाज पढ़ के ना आओगे तो रोटी वोटी खाना वाना कुछ ना देंगे, तो जितने सब डरपोक के सबके सब नमाज पढ़ के घर पहुंचेंगे। सही बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात जरूर कड़वी है, मगर साहब